أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ سر. وٹ اباؤٹ یو؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آج آپ کا 18 بلکہ 19واں یہ سمجھیں آخری سبق ہے، کیونکہ اس میں کورس پورا ہو جائے گا. کل کی جو کلاس ہوگی وہ خصوصی کلاس ہوتی ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے وہ واقعی 50% ہے یا نہیں. تو سمجھے اصل کورس یہ آج پورا ہو جائے گا. آج یہ ایک طرح سے آخری کلاس ہے، اس لیے یہ ایک اہم کلاس ہے. تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں. جب تک میڈم جو ہے وہ کلاس جوائن کرتی ہیں، تو جیسے ہی وہ جوائن کریں گی تو وہ پھر آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. ہم نے کل کے سبق میں یہ دیکھا تھا قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. اور گرامر میں آپ نے دیکھا تھا ایک چیز، اس میں فاعل اور پھر جو ہے اس میں مفعول اور مصدر یعنی کام کرنا. اور پھر آپ نے اس سے فاعل، جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر جو ہے بہت سے فاعل اور مفعول اور مصدر بنائے. تو سب مل کے کہیے اپنی جگہ الحمد. سبق نمبر 19 کے ختم تک آپ نے 232 الفاظ سیکھ لینے ہیں، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آج آپ کا کورس مکمل ہو رہا ہے. پھر سے دوبارہ جو ہے سب مل کر کہیے، کیا کہیے؟ الحمدللہ. 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 جیسے آپ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے، میری بندی نے دیکھو میری تعریف کی. تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آج کے سبق میں آپ سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ، گرامر میں عابد، دارب، سامع، عالم، عامل، مزید جو ہے وہ فاعل سیکھیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے نکات تعلیم یا شوق کے علاوہ 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 650 بار تقریباً آئے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے یہ ایک آیت سیکھی تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ایک حدیث بھی سیکھی. اور دوسری حدیث انما الاعمال بالنیات. آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے. اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کریں. تو بار بار دعا کیجیے، اور جو وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان کا استعمال کیجیے. اور تیسری چیز ہے مسابقت کا جذبہ، یعنی آپس میں مقابلہ دین سیکھنے کے لیے. تو کون سی دعا پڑھیں؟ وہی دعا جو ہم آپ کو ہر روز بتاتے ہیں، ربی زدنی علما. ربی، اے میرے رب، زدنی، 2 ٹکڑے، زد زیادہ کر، نی مجھے، علما علم ہے. کون سا رب؟ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، کروڑوں خلیوں کا، حالات کا اور کیفیات کا. زد زیادہ کر، نی مجھے، زیادہ کر مجھے، اس میں علمن علم ہے. یعنی ایک معنی علم کے یہ ہیں کہ ہم جو کچھ سیکھیں وہ جو ہے علم ہے، اور دوسرا ہے کہ اس پہ عمل کریں. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے کے سلسلے میں. اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے. آئیے اصل آیت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيٌ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی. ایک ایسا شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہو، وہ کیسے مانگے گا؟ کس طرح دعا مانگے گا؟ ظاہر ہے اسے فکر ہوگی، اسے یہ ہوگی کہ میرا آپریشن جو ہے صحیح ہو جائے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپریشن کی وجہ سے میں اس دنیا سے چلا جاؤں. یا اسی طرح ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہوگا کیسے مانگے گا؟ تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار جو ہے نماز سے پہلے یا بعد میں، جیسا کہ آیت الکرسی میں بھی آیا ہے علم کا ذکر. اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، علم عطا فرما. اور سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے. دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے میں بھی کی کوشش میں بھی وقت لگائیں. علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو جو ہے پھیلایا بھی جائے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں جتنا معلوم ہے اس پر علم کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی. علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اس لیے کہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. علم. تو آپ میں سے کون اسے پڑھنا چاہتا ہے؟ جی ہینڈ ریز کیجئے. جی ابراہیم اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور پڑھیے اسے. رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. جی آپ کے بعد جو ہے عمر احمد، آپ بھی انمیوٹ کر کے اسے پڑھ لیجئے. رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. شاباش. جی مومنہ آپ بھی انمیوٹ کیجئے اور اسے دہرا دیجئے. یہ کیسی آواز؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. جی ہاں. تو آگے چلتے ہیں. ایک آیت ہے قرآن کی سورۃ العلق کی، الذی علم بالقلم. الذی جس نے، علمہ سکھایا، کیا؟ بالقلم قلم سے. اندازہ کیجئے الذی وہ جو جس، کیا؟ الذی وہ جو جس. اور اس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے الذین، پڑھا نا تھا انعمت، الذین انعمت علیہم سورۃ فاتح میں. یہ وہی ہے، اس کی واحد ہے الذی. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے تعلیم اور دوسرا ہے علم. ہم پہلے تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر ہم دوسروں کو علم دیتے ہیں. حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس میں پہلے تعلیم کا ذکر ہے پھر علم کا ذکر ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا تعلیم حاصل کرنا زیادہ اہم ہے کہ پہلے تعلیم حاصل کریں پھر علم دیں. علم ہوگا تو آپ دیں گے نا. علم کیسے آئے گا؟ تعلیم سے آئے گا. یعنی پہلے آپ سیکھیں پھر دوسروں کو سکھائیں. تو آئیے کیا ہوتا ہے؟ بی کے معنی ہوتا ہے سے، القلم قلم سے، بالقلم قلم سے، یعنی لکھیے. لہذا فوراً قلم اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا. آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم استعمال کریں. کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک پہ. کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب سے. سستی اور لاپرواہی سے نہیں، بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ. نیت کیجئے کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ. علم سیکھنا ہے نا، اس لیے. جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہوتا ہے. مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھیں اور اسی طرح ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں. اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. لکھنے کا عمل اتنا ہے. علم. جی سارا سید انمیوٹ کیجیے اور پلیز اس کو پڑھ لیجیے. جی سر. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. علامہ، یہ ہے علامہ، سکھایا علامہ. جی آپ کے بعد عائزہ سید، آپ بھی انمیوٹ کر کے پڑھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. جی ہاں. جی ہانیہ انمیوٹ کیجیے، آپ بھی اس کو دہرا دیے ایک بار. الذی جس نے، علم سکھایا، بالقلم قلم سے.
जज़ाक अल्लाह। तो आगे हम चलते हैं। अय्युकुम अहसन अमला, अय्युकुम कौन तुम में से, अहसन बेहतर होगा, अमलन अमल में। अमल क्या है, देखें दो जबर आ रहे हैं ना, इसम है। अय्यु कौन, कुम तुम में से, अय्युकुम कौन तुम में से, अहसनु बेहतर होगा, किस चीज में, हसन के मैंने होता है बेहतर, और अहसन का मतलब सबसे अच्छा, सबसे बेहतर। और एक लफ्ज होता है कबीर, उसके मानी है बड़ा। अगर इसके शुरू में अलिफ लगा देना, ये हो जाता है अकबर। इसका मतलब सबसे बड़ा, हम कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े। सगीर छोटा, अगर अलिफ लगा दें तो ये होता है असगर, सबसे छोटा। इसी तरह एक लफ्ज होता है हसन, अच्छा, अलिफ लगा दें तो क्या होगा, अहसन सबसे अच्छा, सबसे बेहतर। अमल, अमल जो है ये वाहिद है, तो ये तो उर्दू में भी हम करते हैं। अमल की जमा क्या होगी जी, बताइए आप लोग, क्या है अमल की जमा? आमाल। अमलन। अमल की जमा आमाल। आमालुन। अमाल। जी, अमाल जो है इसकी जमा होती है, यानी इसे हमने कहाँ पढ़ा था, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये जो कल हदीस आपने पढ़ी थी ना, उसमें था ये लफ्ज। नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा है, घरों में कौन अच्छा है, ऑफिस में कौन अच्छा है, इनफरादी कामों नमाज रोजा जिक्र इज्तिमाई कामों में कौन अच्छा है, इस्लाह दावत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में कौन अच्छा है, खैर के कामों में कौन अच्छा है, अल्लाह के हुक्म मानने में कौन सबसे अच्छा है, और यहाँ इस क्लास में कौन अच्छा है, वो जो बार बार गलत चाइट कर रहा होता है। जब क्लास चल रही होती है तो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, माइक खुला हो तो जबरदस्ती शोर कर रहे होते हैं, वो अच्छे हैं, या वो हैं जो तवज्जो से दिलचस्पी से जम के सुन रहे होते और अपने नोट्स बना रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं। अल्लाह ताला देख रहा है, उसको बताने के लिए सबसे अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। अल्लिम, आपकी बारी है, तो रहीम शाह अनम्यूट कीजिए और प्लीज इसे पढ़ लीजिए। अनम्यूट करें अपने आप को, रहीम शाह। चलें, वो सीट पर ही नहीं है जी। यस सर। जी पढ़िए, अभी आपने बोलना शुरू किया तो पूरी कीजिए आयत। अय्युकुम अहसनु अमला, यूं तुम में से बेहतर होगा अमल में। जी मेहराम सैयद, आप भी जो है अनम्यूट कीजिए और इसे पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आपने दोबारा से अनम्यूट कीजिए और पढ़िए। ओके। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। जजाकल्ला। जी एवरेश मुदस्सर, अनम्यूट कीजिए और पढ़िए। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। जजाकल्ला। तो आइए चलते हैं जी आगे। हमने क्या है, रब्बी जिदनी इल्मा, आज एक दुआ से, दूसरा अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, और तीसरा अय्युकुम अहसनु अमला। इसमें देखें, रब ये इसम था, जिदनी में या इलम है, इल्मा में इलम इलम है, अल्लज़ी ये भी इसम है, कलम कलम जो है ये भी इसम था, कुम ये ज़मीर इसम है, अहसन ये भी इसम है, अमलन इसम। इनमें फेल देखते हैं, जिदनी, जिदनी जो है ये फेल है, अल्लमा ये भी फेल है, दो ही फेल। हरफ देखें, हरफ क्या है, बी, और आई जो है ये भी हरफ। मुसाबकत का जज्बा क्या होता है, नियत कर ली, दुआ कर ली, सारी फैसिलिटीज और खासकर कलम का इस्तेमाल शुरू कीजिए। अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा। याद रहे शैतान अपने साजो सामान के साथ लैस है, क्यों, इसलिए कि आपने कुरान सीखना शुरू कर दिया। शैतान इंकारों पर लौट रहा है और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा तो आपको रोके। याद रखिए शैतान बहुत तजर्बाकार है, लेकिन आपको अल्लाह की मदद हासिल है।
शैतान तैयार है तो फरिश्ते भी तैयार हैं आपके अमाल लिखने के लिए। आप कितनी मेहनत करते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे, पूरा कुरान समझने की तौफीक दे, आमीन। तो चलते हैं ग्रामर की तरफ। इससे पहले कि मैं ग्रामर का सबक शुरू करूं, तो पहले तो ये जिन्होंने हाथ रेज किए इनको डाउन कर लीजिए, और अब अगर आप में से किसी का सवाल है अब हैंड रेज कीजिए। जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, जो कुछ अभी मैंने पढ़ाया है इतनी देर में, उसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो हैंड रेज करके पूछ लीजिए, वरना फिर हम ग्रामर शुरू करते हैं। चलिए, कोई सवाल नहीं है तो आइए ग्रामर की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 19 भी, आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा दोम ग्रामर के जरिए। आज हम मोनस के सिरे फाला, फतहा, नौसरा, दराबा और समिया से बनाना सीखेंगे, लेकिन टीपीआई तो वहीं पे है। तो कौन टीपीआई करेगा? अभी हैंड रेज कीजिए। जी हानिया, अनम्यूट करें और टीपीआई कराइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से मिलकर। ओके, आयजा सैयद आप भी अनम्यूट करके प्लीज इसको दोहरा दीजिए। अच्छा, देखिए, सोचिए, सुनिए, देखिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। देखिए, आपने तरतीब ही बदल दी। सबसे पहले है सुनने का अमल। सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर हम सोचते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर हम किसी को बताते हैं, फिर दिल से करते हैं और मिलकर करते हैं। आपने देखा ना, एकदम आवाज आती है, फौरन आप देखते कहां से आई आवाज, फिर आप पूछते अच्छा ये तो फलां चीज की आवाज है, फिर आप बताते हैं अम्मी अम्मी फलां चीज की आवाज है, फलां चीज हुई। फिर आप पूछते हैं अच्छा क्या कर। ये एक तरतीब होती है। इस तरतीब के करने का मकसद यह, जिस्म के अंदर ये इसी तरह चलती है। कोई शोर की आवाज आई, फौरन कान खड़े हो गए, और से सुना, फिर देखा, फिर जो है सोचा, फिर जो है बोले, और फिर बताया, और फिर कुछ किया। ये तरतीब है, ये तरतीब इसी तरह चलती है। इसलिए इस तरतीब को इसी तरह। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में होती हैं। एक तो होता है इसम, जो किसी का नाम या जगह का नाम हो, मसलन किताब मक्का, और या सिफ्त जैसे मुस्लिम मोमिन। अब मुझे इसकी चाहिए निशानियां। इसम की निशानियां कौन सी हैं जी? बाकी ये सब हैंड डाउन कर लें, और जिन्होंने निशानियां बताने सिर्फ वो हैंड रेज करें, ताकि मैं सिर्फ उन्हीं से पूछूं। जी, इसम की निशानियां क्या होती हैं? ये तो अब मोमिना आप बताना चाहते हैं, बताइए, अनम्यूट करके बता दीजिए सबको। जी, इसम की क्या निशानियां होती हैं? आपने म्यूट कर लिया, बढ़िया, बड़ा अच्छा किया। जी सैमा रऊफ, आप अनम्यूट करके आप बताइए। जी, इसम की निशानियों में ये होता है कि एंड में तनवीन आता है, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, या जी, फिर जो होता है तो अलिफ लाम का स्टार्ट में इजाफा गुड, होता है, या गुड, फिर जब उनको जमा में जमा की सीगे में डालते हैं तो या नून और वाव नून होते हैं। वेरी गुड। और अलिफ ता भी होते हैं, क्योंकि मोन्नेस की जमा अलिफ ता से होती है। मुस्लिमातुन, सालिहातुन, आपने जमा बनाई थी ना मोन्नेस की। तो ये देखिए, हर वो लफ्ज जिसके शुरू में अलिफ लाम आए वो इसम। अगर अलिफ लाम ना हो तो 2 पेश हो, या 2 जबर हो, या 2 जेर हो, इनको तनवीन कहते हैं तीनों। इनमें से कोई आ जाए वो भी इसम है। और अगर जमा का लफ्ज हो तो उसके आखिर में अमूमन वाव नून आता है, जैसे मुस्लिमूना, सालिहूना, काफिरूना। या फिर या नून आता है, मुस्लिमीना, सालिहीना, काफिर। या अलिफ ता आता है, जो मुअन्निस की निशानी होती है, मुस्लिमातिन, सालिहातिन, काफिर। दूसरा लफ्ज जो होता है वो होता है फेल। फेल क्या है? किसी काम का होना या करना बताए, लेकिन शर्त उसमें यह है कि तीनों जमानों में, माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई जमाना भी हो। जैसे फतहा, फतहा ये कौन सा जमाना है? माजी का, हमने सीखा हुआ, उसने खोला। या मलूना, ये भी आपने सीख लिया, ये मुदारे का जमाना है, जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों के मायने हैं। और तीसरा लफ्ज अरबी में होता है हर, जो जुमला बनाने के लिए इसम और फेलों को मिलाए।
مثال اس اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جو ہے وہ آپ نے 7 حرف سیکھے ہیں. پلیز ہینڈ ریز کیجئے, کون مجھے بتائے گا کہ کون سے 7 حرف آپ نے اس کورس میں سیکھے؟ جی, آپ نے اس کورس میں 7 حروف جر سیکھے ہیں, کون بتانا چاہے گا؟ چلیں جی, انمیوٹ کیجئے اور بتائیے. نہیں, وہ سید کون تھے, اس کو انمیوٹ کیوں ملا تھا؟ بی لی من فی انا اندا ما. نہیں, ایسا نہیں ہے. انا بھی حرف جر نہیں ہے اور ما اور اندہ جو ہے یہ بھی حرف جر نہیں ہے. جی سائمہ رؤوف, آپ بتانا چاہتے ہیں, بتائیے, انمیوٹ کیجئے. لا لی من بی فی الا الا ان ما اور اندا اس میں آتے ہیں, سوری اسم میں آتے ہیں. ہم نے 7 سیکھے تھے, ان کو ہم نے 3 سیٹوں کی شکل میں سیکھا. پہلے سیٹ میں ہم نے کہا لی من ان, دوسرے میں نے کہا بی فی اعلی, اور تیسرے میں صرف ایک ہی ہے الا. یہ 7 ہو گئے. بس 7 حروف جر آپ نے سیکھے ہیں, ان کو آپ پکا کر لیجئے, اس لیے کہ قرآن میں صرف 11 حروف جر استعمال ہوئے, 7 یہ ہیں. جب آپ QC2 میں آئیں گے تو آپ کو کوئی 4 اور بتا دے گا, تو 11 پورے ہو جائیں گے. تو اس لیے 7 تو آپ پورا کر لیں نا, کہ کم از کم جہاں قرآن میں آپ کہیں ہاں یہ دیکھو یہ حرف جرا, لی من عن بی فی اعلی اور الا, بس 7 ہے. تو آگے چلتے ہیں. فعل کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا, عربی میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا, فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا, فعل امر حکم دینا ہے, گزارش کر. ہم نے تینوں میں ہی پڑھ لیا ہے. آپ کو یاد ہے, فعل ماضی ہو گیا, آپ نے 11 فعل پڑھے, فعلا, جعلا, فتحا, نصرا, خلقا, عبدا, ذکرا, ضربا, سمعا, علیما. ان کے ہم نے ماضی کے بنائے پہلے ٹیبل, پھر ہم نے مضارع کے بنائے, پھر ان کا ہم نے امر بھی بنایا, افعل, افعلوا, لا تفعل, لا تفعلوا, اجعل, اجعلوا, لا تجعل, لا تجعلوا, افتح, افتحوا, لا افتح, لا تفتح, لا تفتحوا, انصر, انصروا, لا تنصر, لا تنصروا, اذکر, اذکروا, لا تذکر, لا تذکروا, اعبد, اعبدوا, لا تعبد, لا تعبدوا. یہ سارے تابوت یہ آپ سب نے کیے ہوئے. تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, آج ہم ایک اور چیز پڑھیں گے. اس سے پہلے کل والے سبق کو تھوڑا سا دہرا لیں. ہم نے دیکھا تھا فا اینڈ لام سے فاعل, مفعول اور فعل بنایا. ہم نے کیا کیا, فا کے بعد الف کا اضافہ کیا تو فاعل بن گیا, اس سے پہلے میم لگایا اور آخر سے پہلے واو لگایا تو مفعول بن گیا, اور اگر جو ہے فعل اس پہ تنوین لگا دی تو مصدر فعل بن گیا. یہ ہم نے کل دیکھے تھے. مثلا فعلا سے ہم نے کیسے کیا تھا, الف کا اضافہ کیا تو کیا بنا, فاعل یعنی کرنے والا. اس کے بعد ہم نے دوسرا کیا کیا, شروع میں میم لگایا, آخری لفظ سے پہلے واو لگایا تو کیا بنا, مفعول جس پر اثر پڑا. اور تیسرا جو ہے ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے فعل, اس پہ 2 پیش لگا دیں تو مصدر بن جائے. فا اینڈ لام سے فاعل, مفعول, فعل, یہ آپ نے کل کے سبق میں پڑھ لیا. آج ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلتے ہیں. ہم نے کہا ذاکر, یاد کرنے والا, تو مفعول کیا ہوگا, شروع میں میم, آخر سے پہلے واو لگائیں, کیا ہوگا, مذکور جس کو یاد کیا گیا. اور اگر ذکر کہیں گے تو کیا ہو گیا, یاد کرنا. اصل میں یہ کیا ہے, ذاکرن, مذکورن, ذکرن, ان سب پہ 2 پیش ہیں, 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر, کچھ بھی آ سکتا. لیکن آسانی کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ اتنا یاد کر لیں, ذاکر فاعل ہوتا ہے, یہ اس کی نشانی ہے, مذکور یہ لینے والا ہاتھ, مفعول ہوتا ہے, ذکر یہ قوت کا اشارہ, ذکر طاقت کا اشارہ. تو آپ میں سے کون دہرانا چاہتا ہے جی, ہینڈ ریز کیجئے جلدی سے. اوکے چلے جی بھائی, مومنہ آپ نے ہاتھ سب سے پہلے ریز کیا, چلے آپ شروع کرتے ہیں. ذاکر, یاد کرنے والا.
मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना। गुड। आपके बाद है आरफा। आरफा अनम्यूट कीजिए और आप भी दोहरा दीजिए। जाकिर, मज़कूर, जिक्र। गुड। आपके बाद है हानिया। जी हानिया अनम्यूट कीजिए और आप भी दोहराएं। जाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना। गुड। बाकी लोगों से अगले कराते हैं। अगर मैं ये सवाल करूं आपसे, क्या हल अंत जाकिर, तो आयजा सैयद अनम्यूट करके बताइए इसका क्या जवाब होगा। हल अंत जाकिर, क्या आप जाकिर हैं, जिक्र करने वाले हैं? अनम्यूट कीजिए ना। चलें, वो अनम्यूट कर नहीं पा रही तो महराम आप जवाब दीजिए। नअम अना जाकिर। जी हाँ, नम आना जाकिर, जी हाँ मैं जिक्र करने वाली या जिक्र करने वाला। और अगर सवाल हो हल अंतुम जाकिरून, तो उमर अहमद आप अनम्यूट करके जरा बता दीजिए इसका क्या जवाब होगा। नाम 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 नहनु जाकिरून। वेरी गुड, नाम नहनु जाकिरून। जी मोमिना आप भी इसको दोहरा दीजिए, क्या जवाब होगा। हल अंतुम जाकिरून, अनम्यूट करें मोमिना मुदस्सिर। नाम अना जाकिर। भाई मैं तो कह रहा हूँ हल अंतुम जाकिरून, क्या तुम सब जाकिर हो? तुम कह रही हो नहीं मैं सिर्फ अकेली जाकिर हूँ। ये क्या बात हुई? मैं तो सबका पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ हल अंतुम जाकिरून, क्या आप सब जाकिर हैं, जिक्र करने वाले हैं? तो आपको कहना चाहिए नम नाहनु जाकिरून, जी हाँ हम सब जिक्र करने वाले हैं। जब आप कहते हैं ना आना, तो इसका मतलब सिर्फ मैं। तो ये सवाल को समझना भी बहुत जरूरत है, इसलिए कि इम्तिहान में इस तरह के सवाल आते हैं। अगर आप जो है वहां पे नानू की वजह आना लगाएंगे, तो आपको पता है फिर कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर बड़ा होशियार है इस मामले में, फटाफट गलतियां पकड़ लेता है। अच्छा चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास जो फेल है वो है अबादा। तो अबादा से अगर मैं कहूँ इसका वो जो है वो बनाइए फाइल, तो क्या होगा, एन के बाद अलिफ लगाएंगे। तो अपनी जगह दोहरा लीजिए, क्या बनेगा, आबिद। आबिद का क्या मतलब है, इबादत करने वाला। मफूल कैसे बनेगा, शुरू में मीम, आखिर से पहले वाव, क्या, माबूद जिसकी इबादत की जाए। और फेल क्या होगा, इबादत, इबादत करना। आबिद, माबूद, इबादत। जी समिया तौकीर अनम्यूट कीजिए प्लीज और ये जो है दोहरा दीजिए। हल अंत आबिद, आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादत 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 करना। जी महरोश, महरूश अमीन, जी आप भी जो है अनम्यूट कीजिए और बताइए फाइल क्या है। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादत इबादत करना। जी मोहम्मद अहमद अली अनम्यूट कीजिए और आप भी ये दोहरा दीजिए। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादत इबादत करना। चलें जी, चलें अगला हम देखते हैं। अगर सवाल हो क्या हल अंत आबिद, तो हम जवाब में क्या कहेंगे। चलें जी मोमना से पूछ लेते हैं। जी मोमना आप बताइए क्या जवाब होगा, अनम्यूट करके बता दीजिए जल्दी से। हल अंत आबिद, जी क्या जवाब है? अना हाँ पूछिए, जितनी देर में पूछेंगे आप दोबारा अनम्यूट कर ही नहीं पाएंगी। चलें जी, आरिफा आप बता दीजिए। नाम अना आबिद। जी हाँ आपने दुरुस्त कहा, नाम आना आबिद। अगर सवाल हो हल अंतुम आबिदून, तो सैयद इब्राहिम अनम्यूट करके जरा जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा। नअम नहनु आबिदून। वेरी गुड। हानिया आप भी जल्दी से बता दें क्या जवाब बनता है। नाम नहनु आबिदून। आप दुरुस्त
कह रही हैं, इसलिए जो है कंप्यूटर ने भी मान लिया, वो कहता हाँ हाँ ये दोनों दुरुस्त कह रहे हैं। हल जिक्र इबादा, ये एक मुश्किल सा सवाल लग रहा है मुझे, इसका जवाब हम उमर भाई से पूछते हैं। जी उमर अहमद, आप अनम्यूट करके बताइए इसका क्या जवाब होगा। जी आप चले मोमनी। नाम नाम जिक्रुल आबिद इबादा। जी अब्दुल्ला शराम, आप जो है बताइए। नाम जिक्र इबादत। अज जिक्र है ना, अज जिक्र उसी तरह रहेगा। नम अज जिक्र इबादा, यही सवाल है, यही जवाब है। सिर्फ हल हटा के हमने नम लगाना है, तो क्या गया, नम अज जिक्र इबादा, नाम अज जिक्र इबादा। तो चलते हैं, अगला फेल है हमारे पास दराबा। दराबा का क्या मतलब होता है, उसने मारा। ये तो बड़ा खतरनाक फेल है, मारने में मार कुटाई का फेल है। फाइल क्या होगा, दारिब, मारने वाला। मफूल क्या होगा, मदरूब, जिसको मारा गया। और मजदर दर्ब, मारना। ये तो कोई अच्छा काम नहीं है। चले हम इससे पूछते हैं मोमना से। जी मोमना, दारिब से क्या होगा फाइल। आप लोग अनम्यूट करना भूल जाते हैं। जी तारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, जरब मारना। जी हाँ आयजा, आप भी जरा बता दीजिए। जिससे पूछा जाता है वो अनम्यूट हो चुका होता है हमारे पास। दौरब मारने वाला, दरबू मदरूब जिसको मारा गया, दर्ब मारना। जी हमारा उमर, आप भी बता दीजिए। दौरत मारने वाला, मसरूफ जिसको मारा गया, जर्ब मारना। गुड। तो अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। अगर मैं सवाल ये कर लूं, क्या कर लूं भाई, हल हुआ दारिब, तो आरिफा जल्दी से अनम्यूट करके बताइए क्या जवाब होगा। नाम हुआ दारिबुन। वेरी गुड। और महराम सैयद, आपके ख्याल में क्या जवाब होगा इसका। नाम हुआ दौरत। जी हाँ, नाम हुआ दारिब। और अगर कहा जाए हल हम दारिबून, क्या वो सब जो है वो हैं, तो जी सैयद इब्राहिम, आपके ख्याल में क्या जवाब है इसका? नाम हम दौरेबून। हानिया, आप क्या सोच रही हैं, इसका क्या जवाब होगा। नाम हुम दारिबून। आइए कंप्यूटर से पूछते हैं क्या जवाब है भाई। वो कहता है हाँ जी, नाम हम दारिबून। कंप्यूटर भी आप लोगों के साथ मिल गया आज। चले, हल अंत सामे, क्या आप सुनने वाले हैं। नाम आना सामे, जी हाँ मैं सुनने वाला। हल अंत सामेऊन, क्या आप सब सुनने वाले। नाम नानू सामेऊन, जी। अंता का जवाब आना से, अंतुम का नानू से, ये हम सीख चुके। हमने देखा सामे, सुनने वाला। मसमू, जिसको सुना गया। सम, सुनना। तो ये आगे है आलिमा। जी कौन नया है जिसने अभी तक नहीं किया। जी हानिया रिजवान, अनम्यूट कीजिए और ये बताइए कि आलिमा से क्या आएगा फाइल। जी आपने खुद बनाना है। चलें, वो जवाब देगी जी आयजा सैयद, आप बताइए आलिमा से फाइल क्या बनेगा। अनम्यूट करें अपने आप को, आप कर सकते हैं। जिससे मैं सवाल पूछता हूँ वो अनम्यूट हो चुका होता है मेरे पास। आयजा सैयद, चलें वो अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। चलें आरफा, आप बताना चाहते हैं, अनम्यूट करके आप बता दीजिए फाइल क्या होगा। पता नहीं आपने क्या कहा, मैंने नहीं सुना, या आपने बड़ी तेजी से जो है फुर्ती दिखाई है। आप दोबारा अनम्यूट करके बताइए क्या कहा है। आलिमुन। आलिम, और इसका मफूल क्या होगा। जी मालूमुन। और इसका मस्दर क्या होगा, इल्म। इल्म। आलिम, मालूम, इल्म। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया। अब अगर मैं आमिला से कहूं तो क्या होगा, आमिल, अमल करने वाला। मामूल, जिस पर अमल किया गया। अमल, अमल करना।
چلیں جی آگے چلتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے مؤنث کے صیغے سیکھنے تھے. یہ تو کل تک کا سبق تھا جو ہم نے دہرایا. چونکہ قرآن کریم میں مؤنث کے صیغے بہت کم آئے ہیں، اس لیے ہم صرف ماضی اور مضارع میں صرف ایک صیغہ سیکھیں گے ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے. یاد رکھیے دایاں ہاتھ ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، بایاں ہاتھ جو ہم مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر میں کہتا ہوں ہوا فعلا، تو مؤنث کے لیے ہم کہیں گے ہیا فعلت. کیا کیا؟ تا ایک ساکن لگا دی آخر. اگر میں کہوں ہوا یفعلو، تو ہیا تفعلو، تا لگے گی. یاد رکھیں مؤنث کے لیے تا لگتی ہے، چاہے آخر میں لگائیں ماضی میں، مضارع میں شروع میں لگا دیتے ہیں. صرف یہ کہہ دیتے ہیں ہیا تفعلو، کیونکہ یہاں انت بھی تفعلو. اب اگر میں کہوں ہوا فعلا، تو ادھر کیا ہوگا؟ ہیا فعلت. اگر میں کہوں ہوا یفعلو، تو یہاں کیا ہوگا؟ ہیا تفعل. تو چلیں جی کون دہرانا چاہے گا؟ شروع کرتے ہیں اوپر سے. جی مہرام سید دہرائیے. اوکے سر. فعلا، فعلتا، یفعلو، تفعلو. یہ فعلتا کہاں لکھا ہوا ہے ذرا بتاؤ؟ اس پہ تو تا پہ زبر ہی نہیں ہے. یہ ہے فعلت. جب کہیں گے فعلتا اس کا مطلب ہے تو نے کیا، فعلت اس مؤنث نے کیا. یہ فرق ہے. فعلت میں تا ساکن ہے، اس پہ زیر زبر پیش نہیں ہے. فعلا اس نے کیا، ہوا فعلا، ہیا فعلت، تا ساکن ہے. یہ فرق ہے. چلیں اگر میں کہوں فتحا، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ فتحت. اور اگر میں آپ سے پوچھوں نصرا، تو یہاں کیا کہیں گے؟ ہیا نصرت، اور اگر میں کہوں دربا، تو یہاں کیا کہیں گے؟ ضربت، اگر یہاں کہیں سامی، ہیا سامی. سمیت، اگر میں کہوں ہوا یفتح، تو ہیا تفتح، تفتح. یفتحت، ینصرو ہیا تنصرو، انصرو. ہوا یضربو ہیا تضربو، اضربو. ہوا یسمعو ہیا یسمعو. تسمعو. وہ ابھی آپ نے سیکھ لیا نا. اگر میں کہوں ہوا نصرا، تو یہاں کیا ہوگا؟ ہیا نصر، ہیا ہیا نصر. نصر. یا اگر میں کہوں تسرت، ہوا عبدا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیا یا تعبد، یا رابل، ہیا عبدت. میں نے عبدا کہا ہے، عبدا تو عبادت تا ساکن لگا دیں گے. اگر میں کہوں ہوا خلقا، تو یہاں کیا کریں گے؟ ہوا خلقت، یا تخلق، تخلق تو کہاں سے؟ یا یا خلقت. خلقت. تو آئیے آپ لوگ چونکہ ابھی شور کرنے کی حالت میں آ گئے، اس لیے میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں ہم نے 11 فعل پڑھے تھے. اتنے 11. پہلے سیٹ میں تھا فعلا، جعلا، فتح. دوسرے میں کیا تھا؟ نصرا، خلقا، عبدا، ذکرا. تیسرے میں ضربا. چوتھے میں سامیہ، عالمہ، عاملہ. ابھی دیکھیے ہوا فعلا ہیا فعلت، ہوا فتح ہیا فتحت، ہوا جعلا ہیا جعلت، ہوا نصرا ہیا نصرت، ہوا ذکرا ہیا ذکرت، ہوا عبدا ہیا عبدت، ہوا خلقا ہیا خلقت، ہوا ضربا ہیا ضربت، ہوا سامیہ ہیا سامیت، ہوا عالمہ ہیا عالمت، ہوا عاملہ ہیا عاملہ. 11 کے 11 آپ نے جو مؤنث بنا لی. اب آ جاتے ہیں مضارع کے لیے. مضارع میں ہم کہتے ہیں ہوا یفعلو ہیا تفعلو، ہوا یفتح ہیا تفتح، ہوا یجعلو ہیا تجعل، ہوا ینصر ہیا تنصر، ہوا یعبد ہیا تعبد، ہوا یذکر ہیا تذکر، ہوا یخلق ہیا تخلق، ہوا یضرب ہیا تضرب، ہوا یسمع ہیا تسمع، ہوا یعلم ہیا تعلم، ہوا یعمل ہیا تعمل. آپ کے 11 کے 11 آپ کر سکتے ہیں. کاغذ پہ 11 فعل لکھیں اور بولنا شروع کر دیں ہوا کے ساتھ اور ہیا کے ساتھ. تو اگر میں کہوں فعلا، تو اس کا ماضی جو ہے کیا تھا؟ فعلت. کیا کیا؟ تا ساکن لگا. جعلا کیا ہوگا؟ تا ساکن لگائیں گے جعلت. اگر کہوں فتحا، تا ساکن لگائیں گے فتحت.
नसरा क्या लगाएंगे ता साकिन, नसरत। अगर कहें खलका या खलकत, अगर कहें हुआ ज़करा तो हिया ज़करत, हुआ अबदा हिया अबदत, हुआ दरबा हिया दरबत, हुआ सामिया हिया सामिअत, हुआ आलिमा हिया आलिमत, हुआ आमिला हिया। आपको समझ आ गई कि कैसे बनता है माजी में? ता साकिन लगा देते हैं आखिर। अब मुदारे बनाए, मुदारे कैसे बनता है? हुआ यफअलु, या हटा के ता लगा दें तो मुअन्नस हो गया या तफअल। हुआ यजलु, या हटाएं ता लगाएं या तजलु। हुआ यफ्तो या तफ्तो। हुआ यंसु, या हटाएं ता लगाएं या तंसुर। हुआ यखलुकु या तखलुकु। हुआ यज़कुरु या तज़कुरु। हुआ यब्दु, या हटाएं ता लगाएं या ताबुदु हो गया। हुआ यद्रिबु या तद्रिबु। हुआ यस्मो या तस्मो। हुआ यालमु या तालम। हुआ यामलु या तामल। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, आइए टेबल करते हैं कि इब्राहिम अनम्यूट कीजिए और फाला का माजी का टेबल सिर्फ दोहरा दीजिए। फाला उसने किया, फालून सबने किया, फलता आपने किया, फलतू मैंने किया, फलतुम आप सबने किया, फलना हमने किया, फाला तो औरत ने किया। जज़ाकल्लाह। आपके बाद है उमारा उमर जी, आप इसका मुदारे का टेबल जरा कराइए, अनम्यूट करें। देखें जिसका नाम लिया जाता है उसको मैं अनम्यूट कर चुका होता हूं, आपने खुद को अपने अनम्यूट करना होता है। जी हमारा, इसका मतलब वो सीट पे है नहीं, हाथ खड़ा करके जो है कहीं और चली गई। चले मोमिना, आप अनम्यूट कीजिए और मुदारे का फेल दोहराइए। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फाल। ये मुदारे का फेल करा रहे हैं आप, ये माजी का टेबल आप पढ़ रहे हैं, ये तो उसने इब्राहिम ने करा दिया, आपने उससे अगला यफअलु वाला कराना है। अनम्यूट करें, आप दोबारा करें। यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, अफअलूना, तफअलूना, नफअलु, तफअलु। आपका मुदारे का टेबल पक्का नहीं है बच्चे, आप बहुत मेहनत कीजिए क्योंकि आपको दुश्वारी हो रही है। ये तो वो है जो हम बहुत ज्यादा कराते हैं। जी आरिफा, चलें आप मुदारे का टेबल करा दीजिए। यफ़ालु वो करता है, यफ़ालूना वो सब करते हैं, तफ़ालु आप करते हैं, अफ़ालु मैं करता हूँ, तफ़ालूना आप सब करते हैं, नफ़ालु हम सब करते हैं, या तफ़ालु वो औरत करती है। जज़ाकल्लाह, वेरी गुड। अब हमारा रह गया अमर का। आयजा अनम्यूट कीजिए और बताइए ये अमर का टेबल कैसे करेंगे, कीजिए। ओके सर। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिसको किया गया, फ़ेलुन करना। चले जी, काम के नाम को फेलू कहते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं फाला, उसने किया, ये क्या जी? ये माजी की चाबी है, माजी का पहला सिरा। और या फालू वो करता है, ये क्या जी? मुदारे की चाबी है। और अगर कहें इफ फालतू कर, ये क्या है? अमर की। ये तीन चाबी हैं आपके हाथ। जैसे आप कहते हैं ना फाला, आपका जहन चल पड़ता है फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फाल। जैसे आप कहते हैं ना यफअलू, आपका जहन चलना चाहिए यफअलू, यफअलूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू। जैसे आप कहते हैं इफअल, आपका जहन चलना चाहिए इफअल, इफअलू, ला तफअल। इनको कहते हैं तीन अफाल की चाबियां। क्या कहते हैं? तीन अफाल। कौन से? माजी, मुदारे, अमर। फाला माजी की चाबी, यफअलू मुदारे की चाबी, इफअल अमर। चाबी का मतलब जैसे आप चाबी लगाएंगे पूरा टेबल खुलेगा आपका। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतू, फालना, फाल। यफअलू, यफअलूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू, तफ। इफअल, इफअलू, ला तफअल, ला। फर्ज कर लें फालक में जो जालक की चाबी आपको मिली, जालत से क्या होगा? जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जालत। या जालू मुदारे की है, या जालू, या जालू ना, तजालू, अजालू, तजालू ना, नजालू, तजालू। इजाल, इजालू, ला तजल, ला तजालू, जाइलुन, सॉरी अभी वो शुरू नहीं की हमने, सिर्फ
अफाल 3 पढ़े। फर्ज कर रहे हैं आपको मैं कहता हूँ जी नसरा जो है ये एक माजी की चाबी है, आप फौरन शुरू हो जाइए नसरा से, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, नसरा। मैं कहता हूँ यंसुर इसकी मुदारे की चाबी है, यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरुना, नंसुरु। मैं कहता हूँ उनसुर इसकी अमर की चाबी है, आप शुरू हो जाइए उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुर। ये है इन चाबियों का कमाल। मैं कहता हूँ दराबा जो है ये माजी की चाबी है। दराबा का टेबल आपके ज़हन में होना चाहिए, दराबा, दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना, दरब। मैं कहता हूँ यदरिबू मुदारे की चाबी है, आप फौरन टेबल बनाइए, यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू। मैं कहता हूँ इदरिब जो है ये अमर की चाबी, इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब। अब आपको चाबियों की समझ आ गई कि चाबियों से हमने क्या काम ले, हमने ताले खोलने हैं। माजी का ताला खोलेंगे तो माजी का पूरा टेबल आपके सामने खड़ा हो जाए, मुदारे का चाबी लगाएंगे तो मुदारे का पूरा टेबल आपके सामने, अमर की चाबी लगाएं तो अमर और नहीं का पूरा टेबल आप। ये क्या है? अफआल की चाबी। अब 3 होती हैं अस्मा की चाबी, वो कौन सी है? फाइल करने वाला, मफूल जिस पे काम का असर किया, फेल करना, ये क्या है? ये अस्मा की चाबी। आप कहेंगे इनसे कौन से टेबल बनते? इनसे भी टेबल बनते। मसलन फाइल पे अगर मैं 2 पेश लगाऊं तो क्या होगा? फाइलुन, फाइलुन। 2 जबर लगाऊं फाइलन, 2 जेर लगाऊं फाइल। अगर अलिफ लाम लगा दूं अल फाइलु एक पेश, अल फाइला एक जबर से, अल फाइली एक जेर से, 6 बन गए। इसी तरह इनके अगर जमा कर लें, फाइल की जमा फाइलून, फाइलीन, फाइलिन। इसकी मुअन्नस बनाने गोलता लगा दें, फाइलतुन, फाइलतन, फाइलतिन। 2 पेश, 2 जबर, 3 उसकी होगी। अल फाइलतु एक पेश, अल फाइलत एक जबर, 6 6 12। इसके तो 12 टेबल बन रहे हैं। हम आपसे टेबल नहीं बनते, आपको यह बता रहे हैं कि ये चाबियां बेकार नहीं है, ये अस्मा की चाबियां अफाल से ज्यादा चीजें बनाती हैं, लेकिन अभी आपने सीखा नहीं है इसलिए मैं यहाँ नहीं आता। तो आइए हमारे पास एक टेबल है फतह। अब मैं आपसे पूछता हूं इब्राहिम, अनम्यूट करके बताइए इसमें अफाल की 3 चाबियां कौन सी हैं? इस टेबल में अफाल की 3 चाबियां कौन सी हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलें, वो नहीं जवाब दे रहे जी। आरिफा अनम्यूट करके आप बता दीजिए अफाल की 3 चाबियां इस टेबल में कौन सी हैं? फतह, यफ्तहु, इफ्ताह। बस ये 3 चाबियां। फतह माजी की है, यफ्तहु मुदारे की है, इफ्ता जो है वो अमर की है। अब अगला सवाल है, वो भी आप ही जवाब दीजिए, इसमें अस्मा की 3 चाबियां कौन सी हैं? फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। इसका मतलब हुआ हमें माजी की चाबी फतह है, इससे ये पूरा टेबल माजी का खुलता है। यफ्तहु मुदारे की, इससे पूरा ये टेबल खुलता है। इफ्ता ये अमर की, इससे यहां तक ये पूरा। फातिहुन, मफ्तून, फतहुन, इसके टेबल अभी हमने आपको नहीं सिखाए, इसलिए इसको आप भूल जाइए कि इसके टेबल क्या बने। सीधे सीख लीजिए ये 3 अस्मा की चाबी के हैं, फातिहुन, मफ्तून, फतहुन। तो आगे चलते हैं। फतह उस टेबल में क्या थी? माजी की चाबी फतह, मुदारे की चाबी क्या थी? आरफा ने कहा यफ्तहु, अमर की चाबी उसने कहा इफ्ता। मैंने कहा 3 अस्मा की चाबी है, उसने कहा फाते, मफ्तू, फतह। तो उस टेबल से ये 6 चाबी। जब आप कहते हैं फतहा, पूरा टेबल आपका खुलता है। फतहा, फताहु, फताहता, फताहतु, फताहतुम, फताना, फताह। यफ्तहु, यफ्तहुना, यफ्तहु से यफ्तहु, यफ्तहुना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहुना, नफ्तहु। इफ्ता से इफ्ता, इफ्तहु, ला तफ्ता, ला तफ्ता। ऑफ कोर्स फातिहुन, मफ्तून, फतहुन का हमने टेबल नहीं बनाना, सिर्फ याद रखना कि 3 अस्मा की चाबियां ये हैं। अब ये आ गया नसरा का टेबल है। तो रहीम शाह आप बताइए इसमें अफाल की 3 चाबियां कौन सी इस टेबल में? जी नसरा, जी जी, नसरू नहीं है यंसुरु, जी, अमर अंसुरु। अंसुरू नहीं होता, उनसुर होता है, उनसुर।
اور اس کی 3 اسما کی چابیاں کون ہیں؟ چلیں عائزہ آپ بتا دیجئے، وہ تو جوش میں آیا ہوا ہے. عائزہ انمیوٹ کیجئے اور بتائیے 3 اسما کی چابیاں ٹیبل نصرہ میں کون سی ہیں؟ چلیں ہانیہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. ہانیہ 3 اسما کی چابیاں ناصرہ ٹیبل میں کون سی ہوں گی؟ بنائیے. ناصرن، ناصرون، منصور، یس، ناصر منصور، اور نصر. اب ہمیں 3 چابیاں افعال اور اسما کی بنانی آ گئی. ماضی میں کیا ہے؟ نصرہ، مضارع میں ینصرو، امر میں انصر، اسما میں ناصر، منصور، نصر. آئیے ٹیبل بناتے ہیں. نصرہ سے نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. ینصر سے ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصر. اور یہ تو ہم نے صرف ایک کی چابی بنانی ہے. ناصر، منصور، نصر. ٹیبل تو بنانے نہیں، جب ٹیبل آپ کو سکھائیں گے پھر آپ سے ٹیبل بھی بنوا لیں گے. آگے آ گیا جی دربا کا ٹیبل. اب آپ لوگ سیکھ چکے ہو تو لہذا اب جو ہے کون بتائے گا؟ چلیں ابراہیم سے ہی پوچھ لیتے ہیں دوبارہ. ابراہیم علی شاہ بتائیے اس میں ماضی مضارع امر کی چابیاں کیا ہیں دربا کی؟ ضربا، یضربو، اضرب. جی. اور اسما کی چابیاں کون سی ہیں؟ ضاربن، مضروبن، ضربن. گڈ، آپ نے بالکل درست کہا. دیکھتے ہیں کمپیوٹر کیا آپ کا جواب مانتا ہے. کہتا ہے ماضی کی چابی دربا، مضارع کی یضربو، امر کی اضرب. آپ کے تینوں جواب درست ہو گئے. اسما کی آپ نے بتایا. دیکھتے ہیں کمپیوٹر کیا کہتا ہے. کہتا ہے داربن، مضروبن، ضربن. آپ کا تو پورا سوال صحیح ہو گیا بھائی، مبارک ہو. تو آئیے اب اس کے ٹیبل بناتے ہیں. دربا سے کیا ہوگا؟ دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا، دربت. یدربو سے کیا ہوگا؟ چابی لگائی وہ بولنے لگ گیا. یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو، تدربو. ادرب کی چابی لگائی. ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو. اب یہاں تو ہم نے صرف اسم ہی بتانے. داربن، مضروبن، ضربن. آگے ایک ٹیبل آ گیا سامیہ کا. مجھے 6 چابیاں چاہیے. کون بھائی ہے ایسا جو نیا بندو؟ ہاں سمیہ نہیں ہے. سمیہ روف آپ اس کی 6 چابیاں ذرا بتائیے. افعال کی 3 چابیاں پہلے، پھر اسما. انمیوٹ کر. سمع، جی. سمع یسمع اسمع، اور سامع مسموع سمع. گڈ. آئیے دیکھتے ہیں کمپیوٹر آپ کا جواب مانتا ہے یعنی. میں نے تو مان لیا بھائی. دیکھو کمپیوٹر اور میرے اندر بہت فرق ہے. وہ مشین ہے، میں انسان ہوں. میں غلطیاں کر سکتا ہوں، وہ غلطیاں نہیں کرتا. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے جی سامیہ ماضی کی چابی ہے. آپ کا درست ہوا جواب. یسم وہ کہتے ہیں مضارع کی، یہ بھی درست ہو گیا. اسما امر کی، اس نے کہا افعال کی یہ 3 چابیاں تھی. آدھا سوال تو درست تھا. آگے دیکھتے ہیں اسما کی چابیاں. وہ کہتا ہے سامعن، مسمون، سمن. آپ کا تو بھی پورا سوال چیک ہو گیا، درست ہو گیا. آپ کو تو 10/10 مل گئے بھائی، مبارک ہو. 10/10 مجھے بھی نہیں دیتا کمپیوٹر، ایسا سکتا ہے. تو آئیے اس کا ٹیبل کرتے ہیں. سمیا، سمعو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، سمیت. مضارع سے کیا ہوگا؟ یسمعو، یسمعونا، تسمعو، اسمعو، تسمعونا، نسمعو، تسمعو. اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمع. سامع، مسموع، سمع. آپ کا ٹیبل بن گیا. آئیے آج آپ کو ایک چھوٹی سی چیز میں بتا دیتا ہوں. پڑھیں گے تو یہ آپ کل کی کلاس میں آپ کو پڑھایا جائے گا. مثلا ینصرو مضارع ہے نا. ینصرو کیا مطلب؟ وہ مدد کرتا ہے. اگر اس کے ساتھ میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں تو کا کے معنی ہوتا ہے آپ، تم. تو یہ بن جائے گا ینصرو کا، وہ آپ کی مدد کرتا ہے. اگر کہیں ینصرونا کیا مطلب؟ وہ سب مدد کرتے ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم کا لگا دیں یعنی آپ کی، تو یہ کیا ہو گیا؟ ینصرو کا، وہ سب آپ کی مدد کرتے ہیں. اگر میں کہوں تنصرو، آپ مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ اگر میں کیا لگا دوں تو کیا ہوگا؟ تنصرو کا، آپ اپنی مدد کرتے ہیں، آپ اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تنصرو کے ساتھ اگر کیا ہوتا ہے؟ انصرو، میں مدد کرتا ہوں. اگر کا لگا دیں تو کیا ہوگا؟
अंसुरू का, मैं आपकी मदद करता हूँ। तंसुरूना, आप सब मदद करते हैं, का लगाएं, तंसुरूना का, आप सब आपकी मदद करते हैं, यानी एक की। नंसुरू, हम मदद करते हैं, का लगाएं तो क्या होगा, नंसुरू का, हम सब आपकी मदद करते हैं। कुरान के अंदर अफाल इस तरह आते हैं, फेल के साथ ये जमायर जो है हु, हुम, का, ई, कुम ना जुड़ के आते हैं। मसलन यंसुरू, अगर मैं या लगा दूं, या के मैंने क्या होता है मैं, तो ये क्या होगा, यंसुरूनी, एक नून इससे पहले लगाया जाता है, यंसुरूनी, वो मदद करता है मेरी। अगर मैं कहूं यंसुरूना, वो सब, या लगा दें, यंसुरूनी, वो सब मेरी मदद करते हैं। यंसुरू के बजाय तंसुरू ले, तंसुरूनी, आप मेरी मदद करते हैं। उनसुरूनी, अनसुरूनी, मैं मेरी मदद करता हूं, यानी मैं अपनी मदद आप करता हूं। तंसुरूनी, आप सब मेरी मदद करते हैं। नंसुरू, हम सब मदद करते हैं, नी, मेरी, हम सब मेरी मदद। तो ये इंशाल्लाह कल आपको पढ़ाया जाएगा। आइए, आपने बहुत ज्यादा मुझे बर्दाश्त किया, तो चले चलते चलते आपको थोड़ा सा, यालमू क्या है जी, मुदारे का फेल है, क्यों, या आ रहा है, क्या है, वो जानता है। रज़क़ता, ता आखिर में आ रहा है, माजी का फेल है, रज़क़ता, तूने रिज़्क़ दिया। नालमू, नून शुरू में आया, मुदारे का फेल है, क्या होगा, हम जानते हैं। रज़क़तू, माजी का फेल है, क्या होगा, मैंने रिज़्क़ दिया। और इसी तरह यखलुकू, मुदारे का फेल है, क्या वो पैदा करता है। आबुदू, मुदारे का फेल है, क्या मैं इबादत करता हूँ। नरजुकू, मुदारे का फेल है, हम रिज़्क देते हैं। अखलुकू, मैं पैदा करता हूँ, मुदारे का। अनमता, माजी का फेल है, क्योंकि आखिर में ता आ रही है, तूने इनाम किया। नालमू, मुदारे का फेल है, हम जानते हैं। खलकता, मुदारे माजी का फेल है, तूने पैदा किया। सदाकत, ये देखें तासा का नहीं, मोनस के लिए, माजी की निशानी, उस मोनस ने सच कहा। तो आइए सवालों पर तेजी से नजर डालते हैं। रहीम का मतलब है क्या, मुसलसल रहम करने वाला। अस्वालिहात का मतलब है अच्छे अमाल। यस्सर ना के मानी है हमने बनाया आसान। जिदनी के मानी है ज्यादा कर मुझे। अल्लाह ताला ने रब्बे जिदनी इल्म किसे सिखाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस्लामी तालीमात के सबसे अहम जराए के हैं हदीस और कुरान, याद रखिएगा। अल्लाह जीना के मानी है वो लोग जो। ahsan का मतलब है बेहतरीन। नियात का वाहिद होता है निया। अय्युकुम का मतलब है तुम में से कौन। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया ताकि वो देखे कौन हम में से बेहतर है अमल में। अल्लाह हमें स्वाब देगा किस तरह, हमारी नीयतों और हमारी कोशिशों पे। अल्लाह ने हमें पैदा किया देखने के लिए कौन बेहतरीन है, किसमें, इनफरादी कामों में, समाजी कामों में, नमाज में, सीखने में। चारों जवाब दुरुस्त हैं। वह यंसुरुल्लाह का मतलब है और वो सब मदद करेंगे अल्लाह की, और वो सब मदद करते हैं अल्लाह की। यामलून सय्यात का मतलब है वो सब करते हैं बुराइयां, ये वो सब करेंगे। ये देखिए यामलू मुदारे है ना, तो इसके दो तर्जुमे होते हैं, हाल और मुस्तकबिल। कैफ़ तअमलून का मतलब है कैसे तुम सब अमल करते हो या करोगे। वला अंतुम आबिदून का मतलब है और ना तुम इबादत करने वाले हो। जवाब दो, हल अंतुम आबिदून, नाम नाहनु आबिदून। हल हम दारिबून, नाम हम दारिबून। और हल अंत सामे, जवाब होगा नाम आना सामे। हल अंतुम आलिमून, जवाब होगा नाम नाहनु आलिमून। फ़ाअला का मुअन्निस क्या होगा, फ़ाअलत, ता साकिन लगा देंगे। तदरिबू का तर्जुमा होगा तुम मारते हो या वो मारती है। तदरिबू अंता भी होता है, हिया के लिए भी होगा। हिया तफ़अलु के मानी होंगे वो करेगी या वो करती है। मुदारे है, दो तर्जुमे होंगे, हाल और मुद। ताल्लमा का मतलब है उसने, क्या है, ताल्लमा उसने सीखा। वो जानती है, तुम जानोगे वो जाने, उसने सीखा। हुआ यामलु, वो अमल करता है। उसका हुआ यामलु का क्या होगा, या, हाँ जी, या तामलु, वेरी गुड जिसने कहा। तो आइए कहिए, सब मिलके कहिए भाई, आज का सबक आपने मुकम्मल कर लिया। ये आखिरी सबक था समझे, क्योंकि कल तो दोहराई का सबक है। तो क्या कहिए, सब मिलके जोर से कहिए,
सब अनम्यूट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जितना आपने कहा इससे ज्यादा तो मेरी आवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे ज्यादा तो मैंने ही कर दिया। शुक्र, सीख आप रहे थे, आप लोगों को कहना चाहिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला कहते हैं हमदनी अब्दी। देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आप मस्ती में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु। तो आज के सबक नंबर 19 के इख्तिताम पर आपने 232 अल्फाज सीखे जो कुरान में 41,112 आते हैं। यही हमारा टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हुआ। कल के सबक में आपने एक तो दोहराई करनी है, देखना है कि आयत जो हमने सीखा है वो वाकई 50% है, और दूसरा कुछ 2-3 चीजें रह गई हैं वो इंशाल्लाह कल के सबक में सिखाई जाएंगी। तो आइए हम जो है ये देख देते हैं। हमने आज जो पढ़ा था उस आज के सबक में नए अल्फाज से कल के, बल्कि ये कल के सबक हैं। लक़द यस्सरनल अल कुरान तअल्लमा अल्लमा इन्नमल अमाल, नियात फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल। और इस तरह जो है कल के सबक में आपने जो सीखे थे वो 222 तक अल्फाज थे। आज के सबक में आपने नए अल्फाज सीखे हैं। जिद, अल्लज़ी, अलकलम, अय्युकुम असना अमला, आबिद, दारिब, सामे, आलिम। और इस तरह आपके ज़ख़ीर अल्फाज आज के 19वें सबक में 232 हो गए, जबकि 18वें सबक में आपने 14 लफ्ज़ नए सीखे, 222 लफ्ज़ सीखे थे। और आज के जो है सबक में आपने 10 नए लफ्ज़ सीखे हैं, जिनके साथ आपका मजमुआ 232 पूरा हुआ। यही हमारा टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का नुक्ता तालीम यह है कि कितना याद रखते हैं। 25% जो हम पढ़ते हैं, 35% जो हम सुनते हैं, 50% जो हम देखते हैं, 60% जो हम कहते हैं। तो इसका मतलब है कौन सा ऐसा तरीका है जिससे ये सारा जो है मिलके 100% या उससे के करीब हो जाए। 75% जो हम करते हैं, 95% जो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कहते हैं। यानी ये सारे करेंगे तब 95% याद होगा। यानी जो हम पढ़ते, सुनते, देखते, कहते हैं वो 95% याद है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो है क्या कीजिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। इस तरह जो है वो आपके होते हैं। तो कुरान सीखने के लिए हम क्या करेंगे, टीपीआई का और क्लास में टीपीएस। टीपीएस क्या होता है, ये जो आप ट्विन पेयर वो करते हैं ना प्रैक्टिस, उसको कहते हैं। यानी 2-2 की जोड़ियां बनाकर एक दूसरे को पढ़ाएं। और 7 होमवर्क आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे काम रोजाना होते रहेंगे और कोर्स की हर चीज खूब याद रहेगी, वरना भूल जाएंगे। फिर से कहिए अपनी अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के जो है सबक में ये आपने नए अल्फाज देख लिए और कल के सबक के भी। तो आइए दुआ करते हैं। याद रखिए आप मुंतखब में, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस आखिरी क्लास तक पहुंच गए हैं। अपने लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द कीजिए और अगले क्लास के लिए तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह वो जल्द शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़।